Assalamu alaikum students. I hope that you are fine in your houses. In this lecture, I will teach you present perfect continuous tense or past perfect continuous tense. First of all, we will discuss past perfect definition of past perfect continuous tense. Past perfect progressive tense or past perfect continuous tense is used to describe an ongoing action that started in past and continued for some time in past. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे वो काम बयान किए जाते हैं जो कि मादी ही में शुरू हुए थे और मादी में कुछ टाइम तक वो जारी रहे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन लिसनिंग सॉन्ग फॉर 2 hours एंड सेकेंड, दे हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 1995. नेक्स्ट, here are two headings: main verb and positive sentence. First, we will discuss about main verb. In this sentence, we use present participle forms, means first form plus ing, and auxiliary verb had been or auxiliary verb had been. इस इंस्टेंस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन का इजाफा करते हैं. इसी में ये एक बात आपको बयान करता चलूँ कि जो हैड बीन हमारे इस्तेमाल होता है वो तमाम प्रोनाउंस के साथ और सिंगुलर प्लूरल नेम इन सब के साथ हमारा हैड बीन का इजाफा किया जाता है. नाउ वी डिस्कस पॉजिटिव सेंटेंसेस. Here you are watching subject positive sentence formula. First of all, subject plus had been plus present participle bracket base form of verb plus ing plus object plus time reference. Time reference means preposition since or for. सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हेड बीन आते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट और फिर प्लस टाइम रेफरेंस मीन्स सिंस या फॉर आता है. जैसे कि हमने सिंस और फॉर के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बयान किया था, वहाँ पे आपको इसकी पिक भी भेजी थी. जस्ट लाइक जो वहाँ पे यूटिलाइजेशन है वहाँ पे इस्तेमाल आते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर भी वही यूटिलाइजेशन है. आप पॉजिटिव सेंटेंस ये जो फार्मूला आपको दिया गया है ना, इसके लिखे यहाँ पे लिखने के बाद आप वहाँ का जो सिंस और फॉर है आप वो D2 यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं. क्लियर है? और ना भी करें, अगर आपके जहन में है तो आप ना भी करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं. हियर इज सम एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंस. शी हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 hours. She had been studying in that university since 2008. They were playing football since 10 o'clock. He had been working for a newspaper for 5 years. They had been running their business since 1987. She had been waiting for you since Wednesday. Clear? Second negative sentence. Here you are watching, you are looking negative structure. First of all, subject plus had not been plus present participle form plus object plus time reference means since or for. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड नॉट बीन आता है, फिर वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी आता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का प्लस सिंस या फॉर यानी टाइम रेफरेंस आता है. Here is some example of negative sentence. They had not been doing their work since 2003. They had not been eating vegetable for 3 years. They had not been cleaning her home since January 2013. Kid had not been drinking milk for 5 months. He had not taken medicine for 6 months. I had not been listening to music since Thursday.
She had not been trying to get job since 2001. You had not been reading this book for 10 months. He had not been playing chess since 4 o'clock. चेस खेल को बोलते हैं. Next, here you are looking interrogative sentence. Had plus subject plus been plus present participle plus object plus time reference. सबसे पहले हेड इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली आती है यानी फोर्थ फॉर्म आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट का प्लस टाइम रेफरेंस यानी सिंस ऑफ फॉर आता है. Here is some example of interrogative sentence. They had been working on their project since 2005. She had been waiting for her husband for 1 year. Question mark. He had been eating vegetable for 7 months. Question mark. He had been using the same car since 2004. Question mark. He had I been using my camera since 15th September 2009. Question mark. He had been helping your parent for 2 years. Question mark. He had been going to school since 10th May 1995. Question mark. Had the kid been watching cartoon for 8 days? Question mark. यहाँ पे एक दफ़ा मैं आप लोगों को याददाश्त में एक बात मज़ीद रिपीट कर दूँ कि भाई हैड जो आता है या हैड बीन जो आता है वो तमाम प्रोनाउन के साथ आता है, और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी यहाँ पे हेड आता है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव हैज़ या हैज़ बीन आता था, मगर यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे एक ही सी हेल्पिंग वर्ब है जो कि तमाम प्रोनाउन के और तमाम सिंगुलर प्रोनाउन सब के साथ हमारा हेड का इजाफा होता है. टाइम रेफरेंस का इजाफा रिपीट करूँ. टाइम रेफरेंस मीन्स होता है वो प्रीपोजिशन सिंस ऑफ फॉर. सिंस ऑफ फॉर हमारी प्रीपोजिशन है जो कि यहाँ पे टाइम रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होती है. और सिंस ऑफ फॉर के मुतालिक मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप लोगों को पिक भी भेज चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ. अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से उस पिक को कॉपी करके अपने इस टेंस में भी आप लिख सकते हैं. अगर ना चाहें, ज़रूरत महसूस ना करें, आप समझते हैं कि हमारे ज़हन में वो बैठ गया है, तो देन आप ना भी करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. आखिर में मैं आपसे ये बात जो हर दफ़ा कहता हूँ वो कहूँगा कि जैसा काम मैंने आप लोग को पिक के ज़रिए भेजा है इसी सीक्वेंस में आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा. फिर भी अगर किसी किस्म को परेशानी या किसी किस्म को आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग समझने में हो रही है तो आप लोग मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं. इंशाअल्लाह ताला से मैं आप लोगों को भरपूर तरीके से ताउन आप लोगों के साथ भरपूर से ताउन करूँगा. तो अब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.